जय हिंद स्टूडेंट्स, नमस्कार। बहुत स्वागत है ਤੁਹਾਡਾ ਸਟੱਡੀ ਟਿਪਸ ਦੇ ਚੈਨਲ ਤੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਟੀਚਰ ਜਤਿਨ ਸ਼ਰਮਾ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰ ਰਿਹਾ ਲੈਕਚਰ ਨੰਬਰ 2 ਇੰਟਰੋਡਕਟਰੀ ਮਾਈਕਰੋ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਤੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ ਲੈਕਚਰ 1 ਲਈ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਰਿਸਪੌਂਸ ਆਇਆ। ਮੈਨੂੰ ਕਈ ਫੋਨ ਆਏ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੋ ਸਮਝਣਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਯਾਨੀ ਕਿ ਡਾਇਗਰਾਮਸ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਇਆ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਕੀ ਹੈ, ਇਕੋਨਮੀ ਕੀ ਹੈ, ਕੀ ਇਹਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਨੂੰ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਨੇ, ਬਿਊਰੋਕਰੇਟਸ ਨੂੰ ਕੀ ਸਮਝਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਜਦੋਂ ਜੌਬਸ 'ਚ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਕਨਸੈਪਟਸ ਨੇ, ਹਾਊ ਥੀਸ ਕਨਸੈਪਟਸ ਵਿਲ ਹੈਲਪ ਯੂ in your future to earn your money, to earn ਕਿ ਇਹ ਡਿਸੀਜਨ ਮੇਕਿੰਗ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਸ਼ਮਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨਗੀਆਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਹੈ, ਸਮਝਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਵਾਵਾਂਗਾ ਅੱਜ ਮੈਂ। ਤਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝਣਾ, ਟੌਪਿਕ ਬੜਾ ਹੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਵੀ ਕੁਛ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਥੈਂਕ ਯੂ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨ। ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਕੋਈ ਉਮਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਐਜ਼ ਏ ਟੀਚਰ, ਮੈਂ ਟੀਚਰ ਬਾਏ ਚੋਇਸ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਟੀਚਰ ਬਣਨਾ ਚਾਹਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸਭ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਟੀਚਿੰਗ ਤੋਂ, ਸਕਿੱਲਸ ਤੋਂ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਮੈਂ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਬਾਸਕਟ ਬਾਲਟੀ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜੀ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਟਰਮ ਹੈ। ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸਾਰੀਆਂ ਟਰਮਸ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਟਰਮ ਹੈਗੀ ਇਕੋਨਮੀ। ਇਕੋਨਮੀ ਦੀ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਈ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਕਨੋਮਿਕ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਦੀਆਂ, ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਕਿ ਨੇਚਰ ਕੀ ਉਹਦਾ, ਐਂਡ ਉਹਦਾ ਲੈਵਲ ਕੀ ਆ, ਇੰਡੀਆ ਲੈਵਲ ਤੇ, ਵਰਲਡ ਲੈਵਲ ਤੇ, ਕਿਸੇ ਸਟੇਟ ਲੈਵਲ ਤੇ, ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਲੈਵਲ ਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ in economy we consider the economic activities, what is the nature and level of those economic activities। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਚਸ਼ਮਾ ਲਾ ਕੇ ਸਮਝਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਕਿਸ ਲੈਵਲ ਦੀ, ਕਿਸ ਨੇਚਰ ਦੀ ਇਹ ਇਕੋਨਮਿਕ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਕੋਨਮੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸਾਰੇ ਫੈਕਟਰਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਸਮਝੋ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਫੈਕਟਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖੋ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ, ਪੈਸਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਮੇਰੇ ਪਹਿਲੇ ਲੈਕਚਰ 'ਚ ਸ਼ਾਰਕ ਟੈਂਕ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਵੀ ਹੈਵ ਡਿਸਕਸਡ ਅਬਾਊਟ ਦੈਟ ਸ਼ਾਰਕ ਟੈਂਕ, ਹਾਊ ਵੀ ਵਿਲ ਜਨਰੇਟ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਇਨਕਮ ਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, अरे भाई देखो यार पंजाब में कितनी इन्वेस्टमेंट है, अरे भाई बॉम्बे में, मुंबई में कितनी इन्वेस्टमेंट हो रही है, महाराष्ट्र में कितनी हो रही है। तो इन्वेस्टमेंट का एक फैक्टर देखा जाता है कि इस लेवल पे किस नेचर की, किस लेवल की इन्वेस्टमेंट की जा रही है, कि कौन सी कंपनी जैसे टेस्ला विदेश से आके इन्वेस्टमेंट करना चाहती है, मेक इन इंडिया में इन्वेस्टमेंट कितनी हो रही है। ये आप जब बड़े होके आईएएस बन जाएंगे, ब्यूरोक्रेट्स होंगे, तो आपको देश को, स्टेट को, प्रोविंस को चलाने की जिम्मेदारी दी जाएगी। तो इकोनॉमिक्स आपकी मदद करेगी, तो इन्वेस्टमेंट देखी जाएगी। फिर इन्वेस्टमेंट होगी, फिर अगला क्या, प्रोडक्शन। प्रोडक्शन की किस चीज का उत्पादन किया जाए या हो रहा है, तो किस प्रकार कि अभी देश में, कल मैंने पहले लेक्चर में बताया था कि सेमीकंडक्टर्स और चिप्स की बहुत ज़रूरत है। तो इस प्रकार से प्रोडक्शन किस चीज़ की जाए, तो ये एक डिसीजन मेकर को समझना होता है कि किस गुड्स या सर्विस के लिए इन्वेस्टमेंट लेकर आई जाए और किसकी प्रोडक्शन की जाए, और फिर उसकी कंजप्शन क्या हो, कौन कंजप्शन करे, इसकी कितनी कंजप्शन करें, ठीक है जी। फिर एक्सचेंज, कि एक्सचेंज कितना हो, कि कौन चीज जो प्रोडक्शन हो गई उसकी एक्सचेंज में क्या मिले, कितना उसको पैसा मिले। ये सारे फैक्टर्स आपके इकोनॉमिक एक्टिविटीज में आते हैं। इन्वेस्टमेंट, प्रोडक्शन, कंजप्शन एंड एक्सचेंज, तो ये 4 फैक्टर्स हो गए। जब हमारा देश आजाद हुआ था,
हम सबसे पहले क्या कर रहे थे, खेती बाड़ी। एग्रीकल्चर वॉज आवर प्राइम सोर्स ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। जो भी हम काम कर रहे थे एग्रीकल्चर पर कर रहे थे ज्यादा। फिर धीरे धीरे पॉलिसीज बनी, ब्यूरोक्रेट्स, पॉलिटिशियंस सबने मिलकर देखा वर्ल्ड लेवल पे कि किस प्रकार से कौन सी एक्टिविटी की जा रही है, तो उसी प्रकार से इन्वेस्टमेंट आई, उसी प्रकार से प्रोडक्शन की गई, उसी प्रकार से कंजप्शन की गई, फिर एक्सचेंज। तो अब हम इंडस्ट्री की तरफ मूव हो चुके हैं। 1991 में बहुत ड्रास्टिक, बहुत इंपॉर्टेंट चेंज आया था। तो अब हम इंडस्ट्री की तरफ हैं। तो अब हम देखिए कितनी सारी प्रोडक्शन करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, एक्सपोर्ट्स करते हैं। तो ये सब मैटर इकोनॉमिक एक्टिविटीज में आते हैं, इकोनॉमी में आते हैं। तो पहला पॉइंट हो गया आपका कि इकोनॉमी क्या है। अब दूसरा पॉइंट कि आपको मैंने कल समझाया था कि प्रॉब्लम ऑफ रिसोर्स एलोकेशन, कि मेरे पास संसाधन जो है वो लिमिटेड हैं, तो मुझे उनका सही उपयोग करना है। दैट आई हैव टू एलोकेट माई रिसोर्सेज सो रैशनली एंड इंटेलिजेंटली कि मेरे को दैट आई कैन गेट द मैक्सिमम रियलाइजेशन एज एन इंडिविजुअल, कि मेरे को उनका उपयोग करने के बाद मैक्सिमम इनकमिंग यानी इनकम मिल सके। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, कि मेरे पास मान लीजिए 1 लाख रुपए है, तो मैं 1 लाख रुपए का किस प्रकार से उपयोग करूं कि उसका सबसे बेस्ट यूज हो सके। कल की एग्जांपल में क्या था, लैंड को आप क्रॉप्स के लिए, एग्रीकल्चर के लिए यूज कर सकते हैं, फैक्ट्री के लिए यूज कर सकते हैं, हाउस के लिए यूज कर सकते हैं, प्लेग्राउंड के लिए यूज कर सकते हैं। तो रिसोर्सेज आपके स्केयर हैं, आपको उनको यूज कैसे करना है वो देखना है। देखिए याद रखना, जब आप में ये स्किल आ गई ना कि आपके पास जो संसाधन है आप उनका सही प्रकार से उपयोग करने लग गए, आपके पेरेंट्स बहुत खुश होंगे। क्यों? क्योंकि आपको वस्तु की, संसाधनों की वैल्यू पता है। तो ये चीज कौन सिखाती है हमें? इकोनॉमिक्स। शिक्षा दी ही इसीलिए जाती है कि आपका माइंड डेवलप हो, आप अच्छे तरीके से जीवन जी सके, दैट यू कैन सर्व द नेशन। तो टीचिंग भी मैं इसीलिए करता हूं कि लोगों में इस चीज की बहुत आवश्यकता है कि शिक्षा को खूब मजे से सीखा जाए, पढ़ा जाए, कोई बर्डन ना हो। तो आप मेरा साथ देते रहें। तो हम पॉइंट नंबर 2 में हैं। अरे भाई, ये मैंने यहाँ पे एक पोर्ट्रेट भी करा है कि बिल गेट्स जी या मार्क जुकरबर्ग जी, उनके पास भी संसाधन थे जो लिमिटेड थे। तो उन्होंने क्या सोचा, अरे भाई मैं क्या प्रोड्यूस करूं, व्हाट टू प्रोड्यूस, मैं क्या प्रोड्यूस करूं। और दूसरा, जब उन्होंने सोच लिया मैंने क्या प्रोड्यूस करना है, अरे मैं अब करूं कैसे, हाउ टू प्रोड्यूस। मैं अच्छा ये भी निर्णय ले लिया कि ठीक है मैं इस प्रकार से प्रोड्यूस कर दूंगा। फिर तीसरा आया, फॉर हुम टू प्रोड्यूस, किसके लिए प्रोड्यूस करूं। तो ये 3 बातें हैं जो प्रॉब्लम है, सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी। तो 3 बातें, इनका बड़े आराम से, बड़े सही तरीके से विश्लेषण करेंगे हम। पहले, व्हाट टू प्रोड्यूस। जिंदगी भर याद रखना स्टूडेंट्स कि आपको हमेशा डिसीजन ये लेना है, चाहे आप सीनियर मैनेजर्स के लेवल पे हैं, डिसीजन मेकर्स के लेवल पे हैं, चाहे अपना बिजनेस कर रहे हैं। जो स्टूडेंट्स जिनके पेरेंट्स बिजनेसमैन है वो मेरी वीडियो को देख रहे हैं, तो ध्यान से सोचें कि सबसे पहले सोचें कि मेरे को बनाना क्या है, मुझे प्रोड्यूस क्या करना है। अगर आप उस कंसेप्ट में आपकी क्लियरिटी है तो ही आप आगे बढ़े। कि आपको मान लीजिए आप सोचें कि मैंने तो यार कार बनानी है, मैंने कार बनाऊंगा। अरे भाई, कार बनाओगे उसमें इन्वेस्टमेंट लगेगी, उसमें लोग लगेंगे, आपको लोगों की आवश्यकता पड़ेगी, इंप्लॉयमेंट दोगे। तो 1 बनाऊं, 2 बनाऊं, 3 बनाऊं, 100 बनाऊं, 1000 बनाऊं, लाख बनाऊं, 10 लाख बनाऊं, कितनी बनाऊं, तो उसका लेवल भी डिसाइड करना पड़ता है, क्वांटिटी भी डिसाइड करनी पड़ती है। ठीक है, कि गुड्स बनाऊं के सर्विसेज दूं। ठीक है, क्योंकि इनको बनाने के लिए, इनकी प्रोडक्शन के लिए आपको रिसोर्सेज चाहिए, संसाधनों की आवश्यकता है।
तो आपको देखना पड़ेगा कि आप संसाधन किस प्रोडक्शन पर लगाएं। आप चाहे गुड्स दें, चाहे आप सर्विसेज दें। अब जिस प्रकार मैं सर्विसेज दे रहा हूं आपको, तो मैं अपने संसाधन लगा रहा हूं, संसाधनों का मैं सही उपयोग कर रहा हूं, ये मेरा डिसीजन है। तो संसाधन लगेंगे, कितने संसाधन लगा के कितनी आउटपुट करना चाहता हूं मैं, कि सबसे पहले मैं कार बना रहा हूं, कितनी कारें बनाऊंगा, मैं घड़ियां बनाऊं, मैं मोबाइल बनाऊं, मैन्युफैक्चर करूं, कितनी बनाऊं, ये डिसीजन भी आप लेंगे। ठीक है जी। तो अब मान लीजिए आपने यहां पे एक्स एक्सिस पे है कि आप राइस बना रहे हैं, राइस की प्रोडक्शन करेंगे, वाई एक्सिस पे है वीट की प्रोडक्शन करेंगे। अगर आप W1 तक वीट बनाते हैं तो R तक OR तक आप राइस बना रहे हैं। आपने कहा नहीं भाई, हम राइस की प्रोडक्शन बढ़ाएंगे, तो आपके पास जितनी इंप्लॉयमेंट है तो R की प्रोडक्शन R1 तक बढ़ जाएगी। R की प्रोडक्शन ये देखिए R1 तक बढ़ जाएगी, पर वीट की प्रोडक्शन कम हो जाएगी। तो एक जगह से संसाधन उठा के आपने दूसरी जगह पे लगाए, क्योंकि रिसोर्सेज तो स्केयर हैं, लिमिटेड हैं, आपको इनका सही उपयोग करना है। याद रखना, आपके पास जो कुछ है उसका आपको सही उपयोग करना है, तो आपकी जिंदगी सफल है। ठीक है जी। तो आगे हमने क्या कहा कि मान लीजिए ए आइटम की आप प्रोडक्शन ज्यादा करोगे तो बी की कम होगी। ठीक है जी। ऐसे ही देश में है, अब मान लीजिए कोई सरकार है, वो सरकार चाहती है कि अब इस चीज की प्रोडक्शन ज्यादा हो जाए, तो ज्यादा प्रोडक्शन करते जाएंगे तो दूसरे की प्रोडक्शन तो कम हो जाएगी। ठीक है ना, ये बात आपको समझनी पड़ेगी व्हाट टू प्रोड्यूस में, कि आपको प्रोडक्शन क्या करनी है। ठीक है जी। अगला पॉइंट हाउ टू प्रोड्यूस। अब दूसरा पॉइंट है हाउ टू प्रोड्यूस, कि मैं अब प्रोडक्शन करूं किस प्रकार से, कैसे कैसे कर सकता हूं प्रोडक्शन। मैं लेबर लगाऊंगा। अब कुछ फैक्ट्रीज हैं जिसमें सारा काम लेबर बेस्ड होता है, लोग लगते हैं, उसमें क्या होता है कि मशीनरी का कम उपयोग होता है। ठीक है जी। उससे क्या होता है, आउटपुट एक सीमा तक रहती है। मान लीजिए मैंने 100 बंदों को रोजगार दे दिया, 100 बंदों को मैंने फैक्ट्री लगाई, मैंने उनको कहा है कि आपको साबुन बनाना है। साबुन बनाने में मैंने मेन एक्टिविटीज के लिए कुछ मशीन्स ले ली, पर बाकी सारे काम के लिए मैंने लेबर ले ली, तो उसमें मेरी आउटपुट लिमिटेड रहेगी। ठीक है जी। उसमें मेरी एफिशिएंसी भी लिमिटेड रहेगी। ठीक है ना। आप भी काम करते हो, सुबह पढ़ते हो तो बहुत अच्छा पढ़ते हो, दोपहर तक ठीक हो जाते हो, और ठीक है शाम को आप भी थोड़ा डाउन हो जाते हैं। ऐसे सारे जॉब्स में होते हैं। तो एक है लेबर इंटेंसिव कि आप लेबर का यूज करोगे, दूसरा है आप मशीनरी का यूज करोगे कि सारा काम मशीनरी से। ठीक है। इसमें इंजीनियरिंग का बहुत बड़ा सहयोग रहता है। 3 इडियट्स तो आपने देखी ही होगी कि किस प्रकार से फुनसुक वांगडू जी ने सब कुछ इंजीनियरिंग में सब कुछ, वो कैमरा वाईफाई वगैरह। ठीक है जी। तो इस प्रकार से जो आपको प्रोडक्शन करनी है, आपका दूसरा डिसीजन होगा, अच्छा भाई मैंने ये बनाना है या मैंने ये सर्विस देनी है। अब ये सर्विस या गुड्स को मैन्युफैक्चर करने के लिए या प्रोडक्शन करने के लिए मैं वे कौन सा लूं, क्या मैं लेबर का यूज करूं ज्यादा से ज्यादा या मैं मशीनरी का यूज करूं। अगर मैं एफिशिएंसी देखनी है, एफिशिएंसी क्या होती है कि जितना मैंने सामान बनाया उसमें से कितना प्रतिशत सही आया। मैंने मान लीजिए शर्ट्स बनाता हूं, मैंने 1 लाख शर्ट्स एक महीने में बनाई, तो अगर मान लीजिए मेरी कितनी शर्ट्स ठीक आई, मेरी 90,000 शर्ट्स ठीक आई, तो 10% खराब हो गई। कितनी? 10%, बहुत ज्यादा। क्यों? क्योंकि सारा काम मैं लेबर से करवाता हूं। एक और फैक्ट्री वाले हैं, उन्होंने भी 1 लाख शर्ट्स बनाई, उन्होंने क्या करा, मैक्सिमम काम मशीनरी से करा, तो उनकी 1000 शर्ट्स खराब आई। तो ये देखना पड़ेगा, एफिशिएंसी लेबर में कम होती है, कैपिटल में हाई, पर इसके कुछ फायदे भी होते हैं पर्सनल लेवल पे। लेबर को आप
कुछ अलग तरीके से क्रिएटिविटी इनोवेशन में यूज कर सकते हैं, पर मशीन को नहीं यूज कर सकते। मशीन में जो आपने सेटअप, जो टेक्नोलॉजी फील्ड कर दी, उसने वैसे ही करना है। चाहे फैब्रिक कुछ अलग आ जाए, अगर वो उसी ऑटोमेशन के साथ, उसी ढांचे के साथ अगर वो वाइबल है, फिजिबल है, तो मशीन कर देगी, अदरवाइज लॉस। पर जो लेबर में है वो ध्यान लगाएगा, वो सोचेगा कि क्या ये काम उसी पुराने मेथड से होना चाहिए या इसमें कुछ क्रिएटिविटी या इनोवेशन आ सकती है। ठीक है जी, दूसरा पॉइंट। अब तीसरा पॉइंट है एक्सपेंसिव, कि एक्सपेंसिव खर्चा। सर लेबर में तो कम खर्चा होगा। हाँ जी, मशीनरी तो महंगी होती है, लाखों में आती है, करोड़ों में। आपने दिलीप कुमार जी की फिल्म देखी होगी जिसमें वो रेस लगाते हैं घोड़ा गाड़ी, और एक कार के साथ एक पहाड़ी की चोटी पे जाना होता है, वैन लेके जाते हैं प्राण जी और दूसरी तरफ दिलीप कुमार जी घोड़े। तो कैपिटल हमेशा महंगी होगी, मशीनरी हमेशा महंगी होगी और लेबर सस्ती। एम्प्लॉयमेंट तो आप तो अब मेरे को कमेंट में बताएंगे कि एम्प्लॉयमेंट हाई रहेगी, एम्प्लॉयमेंट लेबर में हाई रहेगी और कैपिटल में लो रहेगी। इसी प्रकार ग्रोथ अब मशीनरी बहुत ज्यादा प्रोडक्शन करेगी, जल्दी से जल्दी प्रोडक्शन होगी एक्यूरेसी के साथ, एफिशिएंसी के साथ। तो ग्रोथ किस में ज्यादा होगी? मशीनरी वाले सेक्टर में। अगर मशीनरी का फैक्टर सेलेक्ट करा, अगर हमने लेबर का करा तो उसमें थोड़ी कम रहेगी। तो मैंने जो डिसीजन लेना था कि भाई साहब मैं प्रोडक्शन किस प्रकार से करूं, मैं लेबर का यूज करूं कि मैं मशीनरी का यूज करूं, तो ये डिसीजन मेरे को इन फैक्टर्स को देख के करना है। ये एग्जॉस्टिव लिस्ट नहीं है, ये इंक्लूसिव है, ये मेन फैक्टर्स देखे जाते हैं। आप इन चीजों में जब आप घर में भी डिस्कस करके, जो स्टूडेंट्स के पेरेंट्स बिजनेसमैन है तो वो आप अपनी कल फैक्ट्री में जाएं और वहां पे ये सब चीजें चेक करें, डिसीजन लें। स्टडी का तो मजा इसी प्रकार से आता है। ठीक है जी, जिनके पेरेंट्स नहीं बिजनेस करते या जॉब्स करते हैं तो वो अपने घर के आसपास कोई फैक्ट्री है या किसी फ्रेंड के पेरेंट्स की फैक्ट्री है तो वहां पे जाके चेक कर लो। बाकी हम तो है ही, हमसे पूछिए। ठीक है, मेरा फोन नंबर नीचे दिया होता है कमेंट्स में, तो आप वहां से देख लें। अब थर्ड क्या है? अरे सर ये मैं बनाऊं किन के लिए? हाँ यार, आपने तो बनाने का सोच लिया कि मैंने ये चीज बनानी है, इस प्रकार से बनानी है, तो मैं बनाऊं किन के लिए? तो ये बहुत बड़ा प्रश्न है। फैक्टर्स हैं कि देखिए प्रॉब्लम क्या आती है कि जो व्यक्ति लेबर का काम करेंगे उनको क्या मिलेगी? वेज मिलेगी। जिसने इन्वेस्टमेंट की, कैपिटल लगाई, उसे इंटरेस्ट मिलेगा। जिस व्यक्ति ने लैंड दी उसे क्या मिलेगा? रेंट मिलेगा। अगर मान लीजिए हम सरकार ने पॉलिसी बना दी कि वो सेमीकंडक्टर की प्रोडक्शन ज्यादा से ज्यादा करना चाहते हैं, तो दूसरे की प्रोडक्शन तो कम होगी ना, एम्प्लॉयमेंट तो एक सेक्टर में लगी, पहले से व्हाट टू प्रोड्यूस में आ जाएगी बात। तो इक्वेलिटी होनी चाहिए कि हर चीज पर्याप्त मात्रा में मार्केट में, कमोडिटी मार्केट कल पड़ा था ना, उसमें अवेलेबल हो। क्यों? उसी से प्राइस निर्धारित होगा। अगर कोई चीज इक्वल नहीं है, मान लीजिए एक चीज की बहुत ज्यादा सप्लाई है, तो उसका प्राइस गिर जाएगा। तो फॉर हुम, किन लोगों के लिए आपको बनाना है, इसमें यह डिसीजन लिया जाता है कि आप मान लीजिए आप लेबर का बहुत उपयोग कर रहे हैं, तो लेबर को तो बहुत पैसा मिल रहा है, पर कैपिटल के लिए कुछ नहीं बच रहा। आप ठीक है कि कैपिटल जिसने लगाई उसको इंटरेस्ट नहीं पे कर रहे, तो वेज वाले के लिए, लेबर के लिए पैसे तो मिल रहे हैं। ठीक है, अब रेंट, तो आपको ये डिसाइड करना है आपने किन लोगों के लिए बनाना है। कि मान लीजिए आपको, मैं पंजाब में हूं, पंजाब में एग्रीकल्चर बहुत है, ठीक है, तो खेती बाड़ी के लिए, तो मैं अगर एग्रीकल्चर का बिजनेस पंजाब में करना चाहूंगा तो मुझे देखना पड़ेगा मेरे कंज्यूमर कहाँ पे हैं, मेरे कस्टमर कहाँ पे हैं, कौन लोग हैं, किन के लिए बनाऊं। तो उस प्रकार से डिसीजन लेना पड़ेगा। आप अपने पेरेंट्स के साथ बात करेंगे कि पापा आप जो बिजनेस कर रहे हैं आपके कस्टमर कौन हैं, कहां पे आप उनको सर्व करेंगे, किन लोगों के लिए। तो ये डिसीजन
फॉर हुम टू प्रोड्यूस में लिया जाता है। इसमें एक होती है इंटरपर्सोनल डिस्ट्रीब्यूशन। इंट्रा होती है एक ही सर्कल के अंदर, इंट्रा क्या होती है, एक ही सर्कल के अंदर, यानी ये सर्कल है, अगर यहां पे एक बंदा है, एक बंदा, यहां पे एक बंदा, तो अगर ये आपस में कोई ट्रांजैक्शन करते हैं इन्हें कहा जाता है इंट्रा। और अगर ये दूसरे सर्कल के साथ कोई एंट्री करते हैं तो इन्हें कहा जाता है इंटर। ठीक है, तो अगर अलग अलग फैक्टर्स के साथ कोई ट्रांजैक्शन होती है तो उन्हें इंटर पर्सोनल डिस्ट्रीब्यूशन कहा जाता है। हर व्यक्ति चाहेगा कि उसे ज्यादा से ज्यादा इनकम मिले, उसे ज्यादा से ज्यादा फायदा हो, और सोसाइटी चाहेगी उसे ज्यादा से ज्यादा सोशल वेलफेयर हो। तो इक्वेलिटी रहनी चाहिए, हर व्यक्ति को आमदन मिले, जो वेज से आमदन लेना चाह रहा है लेबर को उसको भी अच्छे पैसे मिले, जो पैसा लगा रहा है उसको भी अच्छे पैसे मिले, जो जमीन दे रहा है उसको भी अच्छे पैसे मिले, और जो व्यक्ति काम कर रहा है एंटरप्रेन्योर है उसको भी प्रॉफिट मिले, और समाज को भी सोशल वेलफेयर हो। तो इक्वेलिटी हो गई। परंतु जब कहीं इनइक्वेलिटी होती है तो उसके भी अलग फैक्टर्स होते हैं कि एक चीज की बहुत अच्छी प्रोडक्शन है, ठीक है जी, तो उस प्रोडक्शन के कारण क्या है कि एक सेक्टर के पास, मान लीजिए मैंने अब ज्वेलरी का बिजनेस शुरू कर लिया, इसमें बहुत महंगी है, या मान लीजिए मैंने गाड़ियों का सेगमेंट शुरू कर लिया, BMW मर्सिडीज ऐसी गाड़ियां बना, तो मेरे पास तो अच्छे पैसे होंगे, मैं अच्छा मैन्युफैक्चरर हूं, एक एक गाड़ी के 30-30 40-40 लाख आते हैं मेरे पास, तो अच्छा मार्जिन है मेरे पास, पैसे बचेंगे, पैसे बचेंगे, मैं क्या करूंगा और इन्वेस्टमेंट करूंगा, ठीक है जी, और सेविंग करूंगा, तो ये मेरे पास ज्यादा होंगे। और जो दूसरा जो सस्ता बाइक बना रहा है, ई बाइक बना रहा है, ई रिक्शा बना रहा है, उसके पास कम पैसे होंगे। तो संतुलन अगर होगा तो ठीक रहेगा। तो आज के लेक्चर में हमने इकोनॉमी एंड इट्स सेंट्रल प्रॉब्लम्स का चैप्टर पॉइंट को डिस्कस कर लिया है, ठीक है जी। इसमें क्या आता है, इकोनॉमी है, इकोनॉमिक्स का एक टर्म है इकोनॉमी, उसमें इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती है, इसका नेचर और लेवल देखा जाता है, इन्वेस्टमेंट कितनी है, प्रोडक्शन कितनी है, कंजप्शन कितनी है, और एक्सचेंज क्या है। फिर ये आगे जाके देखते हैं प्रॉब्लम्स क्या होती है रिसोर्स की, रिसोर्स एलोकेशन की, कि हमारे पास मिनिमम रिसोर्स होते हैं और हमें उन्हें अच्छे तरीके से एलोकेट करना होता है। हमारे बिल गेट्स और मार्क जुकरबर्ग के दिमाग में क्या आता है, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर हुम टू प्रोड्यूस, किसके लिए प्रोडक्शन करूं, ठीक है जी। व्हाट टू प्रोड्यूस में क्या होता है कि मेरे पास क्या गुड्स बनाऊं, क्या सर्विसेज दूं, उनकी क्वांटिटी कितनी रखूं। यहाँ पे हमने जो ये करा है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, अगर एक की मैं प्रोडक्शन इतनी करता हूँ और दूसरे की इतनी करता हूँ, अगर मैंने इसकी प्रोडक्शन कम करी तो इसकी ज्यादा हो जाएगी, क्यों, क्योंकि लेबर एम्प्लॉयमेंट मैंने दूसरे सेक्टर में शिफ्ट कर दी, ठीक है जी। हाउ टू प्रोड्यूस, कि मैं लेबर से प्रोड्यूस करूं कि मशीन से प्रोड्यूस करूं, ये मेरे को डिसीजन लेना है, कौन सी एफिशिएंसी में सही है, कौन सी एक्सपेंसिव है, कौन सी एम्प्लॉयमेंट के लिए ठीक है, कौन सी ग्रोथ देगी, ठीक है, किन के लिए प्रोडक्शन करूं, कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं, वेज होती है, इंटरेस्ट होता है, रेंट होता है, इंटरपर्सोनल डिस्ट्रीब्यूशन, इंडिविजुअल ज्यादा से ज्यादा गेन मांगेगा। तो ये आज का लेक्चर था। कहीं अगर दिक्कत आई हो बच्चों तो मुझे फोन करें 9464271761।